Okay, so let us start. Good afternoon, everyone. Okay, so this is we were learning about what was the subject name? It was your construction engineering and management, right? ये वाला subject हम पढ़ रहे थे, start किए थे. We have discussed the syllabus क्या क्या है इस वाले subject में, and also the first lecture. In the first lecture, we have covered some portion of principles of building planning. Okay, so वो today we will, वास्तुशास्त्र हाँ, yes. वास्तुशास्त्र हुआ था उस दिन वास्तुशास्त्र जो प्लानिंग Yes, yes. So today we will continue. Okay, same topic we will continue. There are the total 12 principles of building planning were there. Okay, we have discussed only one. Remaining principles we will discuss two. Okay, Baba, wait, okay. Sorry. So we will discuss. These are the topic that we will cover. Okay. Acha, before starting, can you please tell me what are the different types of what are the different principles of building planning? In previous lecture we started aspect. Okay, aspect is one of the principle. I said there are 12 number of principles, so can anyone tell other 11? Bolo Animes. Apart from aspect, what are the other principles of building planning? Yeah, Naimul. मैम प्रोस्पेक्ट था, हाँ, कंटिन्यूशन था yes. और और क्या था? एस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट, रूमिनेस, ठीक है, ग्रुपिंग, सर्कुलेशन, प्राइवेसी, फर्नीचर, सैनिटेशन, एलिगेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, इकोनॉमी एंड प्रैक्टिकल कंसिडरेशन. So we will learn this topic. Okay. So among these 12, your syllabus consists of this 6 number of principal building planning only. Okay, but still we will get some idea about this remaining 6 planning principles. Okay. So aspect we have discussed what orientation or positioning of the doors and windows. Okay, in the external words in such a way that we will enjoy the gift of nature. Please mute the mic, everyone. Okay, thank you. So it is the dispositioning of the doors and windows in the external world, with the help of which we will enjoy the gift of nature. Your gifts means what? Sunset, breeze, view, landscape, everything. Okay. So with the help of drawing, I will show you. अच्छा, कोई बोलो तो कौन सा direction में we have to we can plan our kitchen room, we can keep our kitchen in which direction? कौन सा डायरेक्शन में किचन को देना सही रहता था? साउथ ईस्ट। ये साउथ ईस्ट या ईस्ट और साउथ ईस्ट, मेनली साउथ ईस्ट में होता है. ठीक है, तो ये कंटिन्यूएशन हम करें. सपोज दिस इज योर किचन रूम, तो ईस्ट और साउथ ईस्ट में अगर रहेगा तो क्या होगा? देखो, सन का मॉर्निंग का डायरेक्ट सनरेज किचन में पड़ेगा. ओके, देन व्हाट हैपेंस? इट विल किल जर्म्स एंड बैक्टीरिया. ठीक है, तो अल्टीमेटली वहां पे क्या हो रहा है? कुकिंग हो रहा है, फूड्स रह, खाने का सामान रह रहा है, राइट? सो तुम्हारा वो हाइजीन रहेगा. ओके, वहां पे तुम्हारा जो भी फूड पक रहा है, जो भी हो रहा है, ऑल दिस विल बी हेल्दी फॉर यू. तो वो खाना हेल्दी है, देन अल्टीमेटली घर का मेंबर्स का भी हेल्थ हेल्दी रहेगा. ओके, सो दिस इज द एस्पेक्ट. एक एग्जांपल हम दे रहे हैं कि क्यों साउथ ईस्ट में किचन को जनरली प्रोवाइड करते हैं. ओके, दिस वी हैव डिस्कस इन विद रिस्पेक्ट टू वास्तु आल्सो एंड विद रिस्पेक्ट टू साइंस. इसका रीजन ये है कि किचन को क्यों उस डायरेक्शन में देना है. ओके, so similarly we can orient different other units or other rooms as per the vastu or as per the aspect that we have discussed. Okay, अब सेकेंड क्या था? प्रोस्पेक्ट. ओके, कल हमने तुम लोग को कुछ, नॉट इन योर सेक्शन, आई थिंक इन अनदर सेक्शन, प्रोस्पेक्ट का डेफिनेशन बोले थे, वो थोड़ा गलत हो गया था. ओके, एक्चुअली प्रोस्पेक्ट मींस व्हाट? इट इज द आउटसाइड व्यू सीन फ्रॉम इनसाइड ऑफ द रूम. मतलब यू आर इनसाइड द रूम, अब तुम घर के अंदर से बाहर का सीनरियो कैसे दिखता है. ठीक है, सो हम बोले थे यू शुड एंजॉय द गिफ्ट ऑफ नेचर, राइट? मतलब बाहर का सीनरी भी, तुमको ग्रीनरी भी देखना जरूरी होता है. क्यों बोलते हैं कि सुबह उठ के ग्रीनरी देखो आपके लिए, राइट? सो बाहर का ग्रीनरी भी ऐसा प्लान ऐसा करो डोर्स एंड विंडोज का कि तुमको इजीली घर बैठे बैठे बाहर का क्या बोलते हैं नेचर तुमको दिख जाए. ओके, सपोज दिस इज योर रूम, वहां पे तुम बैठे हुए हो. ओके, ये बाहर का ग्रीनरी ऐसा है. ये वाला विंडो कैसा है? देखो, इट इज एट द हाई लेवल, राइट? दिस इज एट द हाई लेवल. तो इसकी वजह से इसका विजन कैसा होता है? इसका विजन है, ये है विजन ऑफ कोन इज दिस वन. ओके,
इसमें ये क्या बाहर का ग्रीनरी दिखाई दे रहा है इसको? अगर इतना ऊंचा हम लोग बिल्डिंग क्या बोलते वो रखेंगे तो, विंडो रखेंगे तो, सो ही कैन नॉट सी द ग्रीनरी, आउटसाइड ग्रीनरीज, राइट? नेचर को यस दिखाई मैम। वो नहीं, तो क्या रहा है, दिस इज नॉट अ गुड प्रोस्पेक्ट। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, विंडो को थोड़ा नीचे कर देंगे जिससे कि इसको देखने में, मतलब बाहर का ग्रीनरी भी वो इजीली देख सके। ठीक है, सो आउटसाइड गुड सेंस और ग्रीनरीज कैन बी सीन बाय सिटिंग इनसाइड द रूम। ओके, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ गुड प्रोस्पेक्ट। तो प्रोस्पेक्ट इसको बोलते हैं। बाहर से तुम कैसे मतलब नेचर को एंजॉय करोगे, अंदर से कैसे नेचर को एंजॉय कर रहे हो। ओके, नाउ कम्स दी प्राइवेसी। अब बोलो तो प्राइवेसी में क्या आता है? प्राइवेसी का मतलब क्या समझ में आता है तुम लोग को इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग प्लानिंग? मैम उस दिन आप बोले थे ना, मतलब प्राइवेसी लाइक डोर, रूम का डोर किस साइड होगा, इससे प्राइवेसी मेंटेन हो सकता है। Yes, yes. It is the again positioning of room and windows. Okay, such that कि तुम्हारा प्राइवेसी मेंटेन हो जाए। मतलब बाहर के जो विजिटर्स है या घर के बाहर से जो भी, सपोज तुम्हारे घर के सामने एक रास्ता है, अब तुम्हारा ऐसा डोर विंडो प्लेस किए हो कि बाहर से सब कुछ दिख रहा है, तुम्हारे अंदर में तुम क्या कर रहे हो, पैसा गिन रहे हो ना कि क्या कर रहे हो, राइट? सब कुछ दिख रहा है, सो प्राइवेसी उसमें है ही नहीं। सो यू हैव टू प्लान इन सच अ वे कि किस पोजीशन में तुम्हारा डोर विंडो होना चाहिए, कितना इसका तुम्हारा लेवल, किस लेवल में विंडो डोर होना चाहिए। ठीक है, सो दिस आर द प्राइवेसीज। अब प्राइवेसी में आता है टाइप्स, एक होता है एक्सटर्नल प्राइवेसी और दूसरा होता है इंटरनल। एक्सटर्नल प्राइवेसी में क्या आता है, एनीवन? एक्सटर्नल प्राइवेसी से क्या समझ में आता है? मैम एक्सटर्नल मतलब घर के बाहर से कोई ना देख सके यस, हमको। एग्जैक्ट नाम से पता चल रहा है, राइट? कि इट इज द प्राइवेसी ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द बिल्डिंग विद रेफरेंस टू द सराउंडिंग। मतलब बाहर के घर से भी नहीं देखना चाहिए, बाहर का रास्ता से भी नहीं देखना चाहिए तुम्हारे घर में क्या हो रहा है। ओके, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल। उसके लिए हाउ, कैसे मेंटेन करोगे प्राइवेसी, एक्सटर्नल प्राइवेसी? क्या करोगे, क्या करना चाहिए एक्सटर्नल प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए? कि बाहर से रास्ता है, कोई जा रहा है तुमको, मतलब तुम्हारे घर में क्या हो रहा नहीं हो रहा उसको दिखने पाए, तो क्या करना चाहिए उसके लिए? मैम विंडोज ड्रॉर सब क्लोज रखूंगा। तो हमेशा क्लोज रखोगे तो हवा भी नहीं आएगा, लाइट भी नहीं होगा, तो डैम्पनेस हो मैम जाएगा घर में, राइट? तो तो हम मैम तो फिर ऐसा नहीं है कि मैम बाहर से देखेगा चलो दरवाजा बंद कर देते हैं, विंडो बंद कर देते, ऐसा तो नहीं है, तो खोलना पड़ता है विंडो। मैम फिर पर्दा दे दूंगा, उससे हवा भी आएगा थोड़ा बहुत और प्राइवेसी मेंटेन रहेगा। ठीक है, ये भी हो गया है, वेरी गुड, पर्दा है। लेकिन ये प्लानिंग में आ रहा है पर्दा वर्दा, बिल्डिंग प्लानिंग में आएगा? तुम तो प्लानर हो, प्लान क्या तुमको बोलेगा अच्छा यहाँ पे खिड़की बना दिया, आप जो मर्जी करो, पर्दा लगाओ ना लगाओ, राइट? वो तो जो घर का वो ओनर है उसके ऊपर है। लेकिन बीइंग अ प्लानर तुम क्या कर सकते हो, तुम अपने से क्या दे सकते हो उस घर को, क्या प्लान करके दे सकते हो? सोचो सोचो। घर के बगल में रास्ता है, ठीक है, तो रास्ता के एक होता है ना बाउंड्री वॉल देते हैं, तो हम लोग क्यों देते हैं बोलो? एक है तुम्हारा प्रोटेक्शन के लिए भी होता है, ठीक है, बाउंड्री वॉल से प्रोटेक्शन भी होता है। और एक होता है कि ये जो देखो यहाँ पे सपोज ग्राउंड फ्लोर से तो दिखना चाहिए ना, ये यहाँ से किस फ्लोर को दिखेगा, जनरली ग्राउंड फ्लोर को ही दिखेगा। तो ग्राउंड फ्लोर में जो विंडो होगा वो पूरी तरह ढक गया है, ठीक है। तो इतना ऊंचा वाला देना है कि एटलीस्ट तुम्हारे तो नीचे वाला फ्लोर का प्राइवेसी मेंटेन हो जाए, मतलब सामने से कुछ ना दिखे। ओके, सो ये वाला बाउंड्री है, सेफ्टी के लिए भी एक होता है। और कहीं कहीं पे क्या लेता है देखो, ग्रीनरीज, ये क्या बोलते हैं, ऐसा तुम्हारा प्लांट्स एंड ट्रीज चारों तरफ लगा देते हैं। ओके, दिस वे वी कैन अचीव आवर एक्सटर्नल प्राइवेसी। ओके, अब दूसरा है कि और भी एक टाइप का प्राइवेसी होता है, इसको हम लोग इंटरनल प्राइवेसी भी बोल सकते हैं, मतलब तुम्हारे रूम और रूम के बीच का प्राइवेसी। ओके, फ्रॉम वन रूम टू अनदर रूम प्राइवेसी कैसे मेंटेन करते हो, तो दिस कैन बी अचीव्ड बाय केयरफुली पोजिशनिंग ऑफ डोर्स एंड विंडोज। ठीक है, एक रूम में एक ही डोर होना चाहिए, ऐसा वाला तुम बनाओगे तो प्राइवेसी मेंटेन होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सपोज तुम्हारा भाई का रूम, एक एग्जांपल अगर हम देते हैं, ठीक है, कल भी हम बोले थे ये वाला कि सॉरी
सॉरी, कल हम बोले थे ना कि सपोज ये है तुम्हारा घर का प्लान, ठीक है। सपोज हम बोल रहे हैं तुम्हारा मेन एंट्रेंस यहाँ से है, ओके। यहाँ से पहले हॉल आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे है एक रूम, यहाँ पे भी एक रूम, बेडरूम, तुम्हारा रूम तुम्हारे भाई का रूम है, ठीक है। इस तरफ किचन, डाइनिंग हॉल जो भी है, तो ये हॉल हो गया, ठीक है। अब रूम टू रूम, मतलब इस वाले रूम के लिए क्या होगा, यहाँ पे एक डोर देना पड़ेगा, ठीक है। और इस वाले रूम के लिए हम यहाँ पे एक डोर देंगे, तो ये प्राइवेसी मेंटेन हो रहा है ना। इसके लिए अलग सा रूम है और इसके लिए भी अलग सा, सॉरी डोर है, इसके लिए भी अलग सा डोर है, ठीक है। किसी को एक रूम से होकर दूसरे रूम में जाने का जरूरत नहीं है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड दी इंटरनल प्राइवेसी, ओके। और अगर ऐसा नहीं करके हम लोग क्या किए, सपोज तुमने बना दिया तुम्हारा रूम ये है, ठीक है, तुम्हारे भाई का रूम ये है, ऐसा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक डोर है, तुम्हारे वाले रूम का यहाँ पे डोर है और तुम्हारे भाई के रूम का यहाँ पे डोर है, ठीक है। तो तुमको अपने रूम में जाने के लिए कहाँ से जाना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो अपने भाई के रूम में जाना पड़ेगा, राइट। तब जाके तुम अपने रूम में पहुंच जाते हो। तो ये क्या प्राइवेसी मेंटेन हो रहा है, इसमें प्राइवेसी मेंटेन। हम बोले कि ठीक है हम एक ही दरवाजा करेंगे, ठीक है, दोनों रूम में एंटर करने के लिए एक दरवाजा, तो एक गया यहाँ से, फिर उसको इस वाले रूम का प्राइवेसी को डिस्टर्ब करके देन ही कैन एंटर हिज रूम, राइट, अपना खुद का रूम में। तो इसमें प्राइवेसी इज हैम्पर्ड, मतलब इसमें कोई प्राइवेसी बचा ही नहीं, ठीक है। सो वी शुड नॉट डिजाइन सच काइंड ऑफ डोर्स, मतलब ऐसा पोजीशन हमको डोर्स में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। सो ये हो गया तुम्हारा इंटरनल प्राइवेसी, ओके। सो सेपरेट रूम शुड बी, सॉरी डोर्स शुड बी केप्ट फॉर ईच रूम्स, ओके। और दूसरा टाइप का प्राइवेसी होता है ये वाला, सपोज ये आउटसाइडर है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा हॉल हो गया और इस वाले में तुम्हारा बेड हो गया। तो ये जो आउटसाइडर है और डोर तुम ऐसे इसको बनाए हो कि सेंटर टू सेंटर, तो आउटसाइडर यहाँ पे बैठा हुआ है, बैठ के देखो तुम्हारे घर मतलब बेडरूम का पूरा व्यू उसको दिख रहा है, ठीक है। तो देखो 90% क्या हो जा रहा है, वो देख पा रहा है कि तुम्हारे बेडरूम में क्या क्या सामान है, कहाँ पे क्या है, ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, सब उसको दिखाई दे रहा है, राइट, अगर दरवाजा खुला हुआ है तो। सो यहाँ पे प्राइवेसी हैम्पर्ड, ओके। सेम इन दिस केस ऑल्सो इट इज हैम्पर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे 50% प्राइवेसी मेंटेन हुआ है लेकिन 50% हैम्पर्ड, ठीक है। तो अगर हम करेंगे कि डोर को कोने में रख देंगे, एकदम इसमें कर देंगे, तो ये एक्सपोज होगा, दिस इज द एक्सपोज्ड एरिया, ये हैश लाइन, इट इज द हेलो आज तुमरा हेलो, हाँ मैम बोलिए मैम। हाँ मैम। अच्छा, तो ये है तुम्हारा एक्सपोज्ड एरिया, ठीक है। अगर बाहर से कोई भी आया विजिटर, उसको दिख रहा है तो ज्यादा दिखेगा नहीं उसको, क्योंकि बाकी का पोर्शन इज व्हाट, इट इज प्राइवेट। पूरा ये पोर्शन जो है पूरा प्राइवेसी मेंटेन कर रहा है, मतलब 75%। सो वी हैव टू पोजिशन आवर डोर इन सच अ वे कि ये एक्सपोज एरिया जितना हो कम हो। इसके लिए कॉर्नर्स में देखना, दरवाजा हमेशा कॉर्नर्स में रहता है, ओके, इसे बीच बीच में नहीं दिया रहता है। सो देखो ये नो प्राइवेसी, ये तो एकदम ही प्राइवेसी नहीं है, ये है मॉडरेट प्राइवेसी और ये मैक्सिमम प्राइवेसी, ओके। सो प्राइवेसी डिपेंड्स ऑन द प्लेसमेंट ऑफ डोर्स एंड विंडोज, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, रूमीनेस। एनी आइडिया इसमें क्या होगा रूमीनेस में, बोलो रूमीनेस में क्या है? रूमीनेस मतलब कौन से रूम के बगल में कौन सा रूम देने से प्लान सूटेबल दैट इज रहेगा। ग्रुपिंग, ग्रुप बनाना, ठीक है। कौन सा स्टूडेंट के साथ कौन सा स्टूडेंट कंपैटिबल है, ग्रुप बनाएंगे हम तो अच्छा प्रोजेक्ट होगा। वैसे ये क्या है, ग्रुपिंग है, वो वाला तुम जो बोल रहे हो, ओके। रूमीनेस का मतलब है कि हम लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा फ्रॉम मिनिमम डायमेंशन ऑफ स्पेस ऑफ रूम, ठीक है। मतलब एक रूम हो गया, उसका डायमेंशंस कम है लेकिन हमको मैक्सिमम बेनिफिट, मतलब वी कैन यूज इजीली यूज अवेलेबल स्पेस, क्या होगा मतलब मूवमेंट करने में एक जगह, मतलब रूम के अंदर भी तो कुछ कुछ होता है ना, कंजेस्टेड रूम हो जाता है कि इतना कम रूम है, ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा डायमेंशन है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये इसको लेंथ वाइज हम बनाएंगे, देखो ये क्या है, ये बहुत बड़ा रूम लग रहा है, हॉल की तरह लग रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर तुम बेड वेड अगर रख दोगे, ठीक है, सपोज ये वाला बोलते हैं, इसे वो और छोटा कर देंगे,
सपोज ये वाला, ठीक है, मतलब ऐसा वाला तुमने रूम प्लान किया है, ठीक है। तो क्या हो जा रहा है कि ये वाला बहुत बड़ा डायमेंशन लग रहा है, एरिया बहुत बड़ा आ रहा है, लेकिन वी कैन नॉट गेट मैक्सिमम बेनिफिट, मतलब यहाँ पे तुम्हारा बेड ही पूरा इतना टूट तक अटक जाएगा, ठीक है। अब तुम कहाँ से चलोगे, कहाँ से बेड पे चलोगे, और साइड में क्या रखोगे, नहीं रखोगे, ठीक है, सामान अलमीरा कहाँ पे रखोगे, तो ये जगह कॉन्जेस्टेड हो जाएगा, ठीक है। सो अवेलेबल स्पेस विल बी वेरी लेस। सो इसको बोलते हैं ये अच्छा रूमीनेस नहीं है, रूमीनेस मतलब कि खुलापन, रूम के अंदर सब सामान है लेकिन फिर भी खुला है, मतलब स्पेशियस है, स्पेशियस लगेगा, दैट इज कॉल्ड रूमीनेस, ओके। सो जैसे कि डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव डायमेंशन ऑफ लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ द रूम, ओके। से फॉर एग्जांपल देखो ये स्क्वायर पैटर्न है, ये रेक्टेंगुलर पैटर्न है, ये दोनों का बेड इधर या तुम्हारा जो भी है इसमें फर्नीचर रखे, इधर भी फर्नीचर है, इतना स्पेस अवेलेबल है इसमें, वेर इज इतना सारा स्पेस अवेलेबल है, राइट। सो मोर अवेलेबल स्पेस एंड मोर लेस अवेलेबल स्पेस, तो रेक्टेंगुलर का जनरली रूम्स हमको रेक्टेंगुलर करने से ज्यादा रूमीनेस हमको मिलता है, ओके, वी विल गेट मोर बेनिफिट, ओके। और एक होता है हाइट के अनुसार भी, हाइट भी हमको ऐसा देना है कि देखो ये लो सीलिंग है, तो ये क्या हो रहा है, लो सीलिंग, जंक्शन ऑफ द सीलिंग ऑफ द वॉल विजिबल क्रैम्प फीलिंग, कि लग रहा है कि कोई तुमको दबा रहा है, ऊपर से ऐसे प्रेस कर रहा है, ऐसा लगेगा, कि ऐसा व्यू आता है जनरली, अगर बहुत कम हाइट वाला फ्लोर रहता है तो लगता है वैसा इफेक्ट आता है, ठीक है। तो इसको भी एक सफिशिएंट डायमेंशंस देना है, हाइट को भी अच्छे से डिजाइन करना है, प्लान करना है, ओके। तो इस देखो प्लान का मतलब क्या है, 2D डायमेंशन, 2D मतलब क्या है, लेंथ एंड ब्रेथ से लेकर ही हम लोग काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। व्हेन यू विल गो फॉर प्लानिंग, व्हेन यू प्लान स्टेयरकेस, जब स्टेयरकेस प्लान करते हो तो कितना नंबर ऑफ स्टेप्स देना चाहिए, ट्रेड राइजर याद है किसी को, ट्रेड राइजर याद है ना, दिस इज कॉल्ड द राइजर, दिस इज कॉल्ड द ट्रेड, दिस इज राइजर, दिस इज ट्रेड, ठीक है। तो ये है एक स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ठीक है। तो कितना स्टेप हमको प्लान में, तो स्टेप्स कैसे देते, अगर यहाँ पे सीढ़ी है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा ऐसा करके देते हैं ना, दिस इज द स्टेप्स, सीढ़ी जब हम लोग प्लान करते हैं, स्टेयरकेस का प्लानिंग करते हैं, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ स्टेप्स कितना देना चाहिए, ये डायमेंशन कितना होगा, ठीक है, तुम्हारा किस रेशियो में हम लोग ये प्लॉट कर रहे हैं, तो ये डायमेंशन कितना देना चाहिए, कितना नंबर ऑफ स्टेप्स होगा, वो भी तो दिखाना पड़ता है प्लान में, ठीक है। सो दिस नंबर ऑफ स्टेप्स अगेन डिपेंड्स अपॉन दी, देखो हाइट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब ये ग्राउंड फ्लोर अगर है तो यहाँ पे जाकर तुम्हारा फर्स्ट फ्लोर आएगा, तो ये जो हाइट है ये भी इसके ऊपर भी डिपेंड करता है तुम्हारा नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेप्स मतलब अगेन प्लान में ये कितना देना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लानिंग में नॉट ओनली हमको ये डायमेंशन, सिर्फ लेंथ और ब्रेथ पता चलता है, हाइट भी पता चल जाता है, ओके, कितना हाइट है, तो ये भी मेंटेन करना पड़ता है कि हमको ऐसा हाइट देना चाहिए कि ये वाला इफेक्ट ना हो, क्रैम्पिंग इफेक्ट ना हो, ठीक है। क्लियर है ये वाला एवरीवन? यस मैम। ओके, अब और एक एग्जांपल है कि देखो ये बहुत लेंथ इसका बहुत ज्यादा है, ठीक है। सपोज ये वाला इफेक्ट देखो, ये ऐसा वाला रूम तुमको मिला है, ठीक है, इसका एक्चुअल लेंथ इज व्हाट, ट्वाइस ऑफ द विड्थ, मोर देन ट्वाइस ऑफ द विड्थ, ठीक है। एक्चुअली ये जो विड्थ है और ये वाला जो तुम्हारा लेंथ है ये ट्वाइस है इसका, ठीक है। इस वजह से क्या हो जाएगा, हमको लगेगा कि इसका एक्चुअली लेंथ इतना है, लेकिन लगेगा कि बहुत लंबा वाला है, मतलब कॉरिडोर टाइप का लग जाएगा हमको, ठीक है, मतलब दैट इज कॉल्ड द परसीव्ड लेंथ, इसको बोलते हैं टनल इफेक्ट। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए हम लोग का डिजाइन प्लान, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, प्रॉपर रूमीनेस मेंटेन करके, मतलब लेंथ और ब्रेथ का रेशियो क्या है, हाइट क्या होना चाहिए, ये सब भी फॉलो करना पड़ता है, ओके, प्रिंसिपल ऑफ बिल्डिंग प्लानिंग में। अब आते ग्रुपिंग, ग्रुपिंग हम बोले थे अरेंजमेंट ऑफ वेरियस रूम्स इन रिलेशन विद देयर फंक्शन, ये याद रखना, इन रिलेशन विद देयर फंक्शन, ओके। डाइनिंग किचन है, किचन में खाना पकता है, फिर डाइनिंग में क्या होता है, वही खाना जाके हम लोग डाइनिंग हॉल में खाते हैं, राइट। सो फंक्शन आर इंटर रिलेटेड, राइट। फिर वहां से उठकर तुम वॉशरूम में जाओगे हाथ धोने, तो तीनों को आसपास में हम लोग अगर रख देंगे तो ठीक है, या हॉल से तुम आओगे डाइनिंग रूम में खाने में, राइट। सो हॉल से भी तुम्हारा पास में होना चाहिए डाइनिंग रूम, ऐसा होना चाहिए कि ग्रुपिंग ऐसा करना है, राइट। तो रूम शुड बी इन ड्यू प्रॉक्सिमिटी विथ ईच अदर, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा किचन एक जगह पर है, सपोज ऐसा हो गया, ठीक है, प्लानिंग यहाँ पे किचन है और तुम्हारा डाइनिंग हॉल सपोज एकदम यहाँ पे तुम बनाए हो और बीच में दूसरा कुछ रूम है, ठीक है। तो क्या होगा, तो यहाँ पे सपोज बाथरूम है,
तो किचन से तुमको देखो कितना दूर जाना पड़ा खाने के लिए, राइट। तो ऐसा नहीं करके अगर हम यहीं पर ही डाइनिंग बना देते तो अच्छा होता, ठीक है। सो दिस इज सपोज किचन, दिस इज सपोज डाइनिंग, ठीक है। ये अच्छा ग्रुपिंग नहीं है, ओके। सो मिनिमाइजेस मतलब इतना सर्कुलेट, मतलब तुमको थाला लेकर उठा के इधर जाना पड़ रहा है, राइट, या घर से जो भी पका वका रहे हैं उसको लेकर डाइनिंग हॉल में जाना पड़ रहा है। तो ये सर्कुलेशन भी ज्यादा हो रहा है, मैक्सिमम सर्कुलेशन हो रहा है, उसको ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा एंड इम्प्रूव्स द कंफर्ट, ठीक है। कंफर्टेबल भी होना चाहिए, इसीलिए ये ग्रुपिंग किया जाता है, ओके। सो अ डाइनिंग रूम शुड बी क्लोज टू किचन, ठीक है। एग्जाम्पल बोल रहे हैं, वाइल सैनिटरी शुड बी फार अवे फ्रॉम किचन, किचन के बगल में बाथरूम मत रख दो, गंदा होता है, ठीक है। सो इट शुड बी अवे फ्रॉम द किचन, वेयर एज इट शुड बी नियर द बेडरूम्स, बेडरूम के आसपास में अगर बाथरूम रख दोगे, सैनिटरी रख दोगे तो चलेगा, लेकिन किचन के पास में नहीं होना चाहिए, ओके। सो किचन शुड बी अवे फ्रॉम लिविंग रूम टू अवॉइड स्मेल एंड स्मोक। अगर किचन में तुमने सपोज तड़का लगा दिया, बाहर लिविंग रूम में कोई गेस्ट आया हुआ है, बैठा हुआ है, तो क्या वो तो खांस खांस के चला जाएगा, राइट। सो इसलिए बोलते हैं कि ग्रुपिंग करना जरूरी है। तो एकदम लिविंग रूम के बगल में किचन है, यहाँ पे एकदम झाल मतलब कुछ एकदम तड़का लगा दिया, वहाँ पे तुम खांसते रह जाओगे, राइट। सो किचन शुड बी अवे फ्रॉम लिविंग रूम टू अवॉइड स्मेल एंड स्मोक्स, ओके। या कुछ ऐसा पका रहे हो कि गेस्ट को वो सेंट अच्छा ही नहीं लगता, वैसा भी होता है। तो ये वाला एक एग्जांपल है, देखो ग्रुपिंग, प्रॉपर ग्रुपिंग का ये वाला एग्जांपल है। देखो फॉरवर्ड, फोयर का मतलब है सपोज यहाँ से तुम एंट्री किए हो, यहाँ पे तुम्हारा एंट्रेंस रहेगा, जो एक मिनी हॉल रहता है या हॉल रहता है, जहाँ पे एंट्रेंस हॉल हम लोग बोल सकते हैं इसको, ठीक है। हॉल हो गया, हॉल से कॉमन रूम, ठीक है। कॉमन रूम मतलब इसमें से सब रूम को कॉमन मतलब सर्कुलेट कर सकते हैं, इधर से यहाँ पे भी जा सकते हैं, इससे यहाँ पे जा सकते हैं, ये कॉमन रूम है, ओके। फिर यहाँ से हम लोग गए डाइनिंग, डाइनिंग के बगल में किचन, ठीक है। और डाइनिंग से तुम्हारा दूसरा हॉल, दूसरा हॉल में हो गया कॉमन रूम के बाद, ठीक है। यहाँ से हॉल हो गया, हॉल से फिर गेस्ट रूम, ग्रुपिंग हो रहा है ना। हॉल में तुम लोग बिठाओगे, फिर गेस्ट को बोलोगे ठीक है आप यहाँ पे रेस्ट कीजिए, ठीक है। गेस्ट रूम के बगल में उसके लिए टॉयलेट है, या हॉल से भी बगल में मतलब हॉल में अगर कोई बैठा हुआ है तो वो भी इजीली वॉश हैंड वॉश करने या वॉशरूम यूज करने के लिए जा सकता है। सो ग्रुप हो रहा है यहाँ पे। अब ये वाला देखो, कॉमन रूम से बेडरूम में गए, बेडरूम के पास में एक टॉयलेट, अटैच टॉयलेट, फिर सेम दूसरा बेडरूम, दूसरे बेडरूम के पास में अटैच टॉयलेट। सो दिस आर कॉल्ड द ग्रुपिंग। ऐसा प्लान बनाना चाहिए, ओके। सो दिस इज ग्रुपिंग, इज इट क्लियर? यस मैम। ओके। अब एग्जाम्पल लेते हैं प्रॉपर ग्रुपिंग का, जो हम बोले थे, ठीक है। जैसे कि ये देखो, तुम्हारा किचन है, डाइनिंग है, ठीक है, फिर लिविंग रूम है, ओके, वेरी गुड, ठीक है। अब ये वाला देखो, किचन, बेड, लिविंग, ऐसा नहीं होना चाहिए। डाइनिंग कहाँ पे जा रहा है? यहाँ पे, इसको मतलब इधर से होके इधर जाना पड़ रहा है डाइनिंग के लिए भी, राइट। ये मुझे एसबी लिखा है वो क्या है मैम? एसबी ये तुम्हारा वॉशरूम, इसको हम लोग वॉशरूम भी बोल सकते हैं, ओके। वॉशरूम बाथरूम की भी आई बोल टी की सकते हैं, हाँ। किचन किचन, किचन ना। किचन, ठीक है, हाँ। सो ऐसा मत करना डिजाइन। एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है, प्रॉपर ग्रुपिंग ओके एंड मैम। प्रॉपर ग्रुपिंग, ओके। अब आते सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का क्या मतलब है बोलो? आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि दो टाइप का सर्कुलेशन होता है। व्हाट आर दोस टू टाइप्स? बोलो। सर्कुलेशन का मतलब क्या है इन जनरल? बेसिक सर्कुलेट कर रहा है तुम्हारे बॉडी में, ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, क्या मतलब? एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा है, राइट। सर्कुलेशन ट्रैवल का कर रहा है इसलिए मतलब, घर में ट्रैवल मतलब क्या है? मूवमेंट। घर में तो मूवमेंट। गाड़ी गाड़ी लेकर नहीं जाओगे, मतलब मूवमेंट। एक रूम से दूसरे रूम में कैसे जाओगे, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में कैसे जाओगे, दैट इज कॉल्ड सर्कुलेशन, ओके। सो मूवमेंट विद इन द प्रेमिस एंड इंक्लूड्स बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सर्कुलेशन, ठीक है। यहाँ पे प्रेमिस क्यों बोला है? तुम्हारा अगर कॉलेज कैंपस में भी अगर बोलेंगे सर्कुलेशन तो लिफ्ट हो गया, स्टेयरकेस हो गया, सो दैट इज योर वर्टिकल सर्कुलेशन, ठीक है। और प्रेमिस मतलब देखो, तुम लोग का दो क्लासरूम अगल बगल में है, बीच में क्या है? पैसेज है ना, दैट इज कॉल्ड कॉरिडोर, राइट। या लॉबी है, तो बीच में सीधा पूरा लॉबी की तरह है, फिर उसके अगल बगल में तुम लोग का क्लासेस है। याद आ रहा है कि भूल गए हो क्लासरूम कैसा था? हाँ, नो याद है। याद है ना? ऐसा है ना, सपोज इधर क्लासरूम से, इधर क्लासरूम से बीच में है ना पाथ मूवमेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये है, एक रूम से दूसरे रूम में तुम जा सकते हो, राइट।
मतलब यहाँ पे दरवाजा है इसका एक रूम का, यहाँ पे दूसरा रूम का दरवाजा है, सेम। इधर में थर्ड ईयर ए है, थर्ड ईयर बी है, ऐसा, ठीक है, सेकेंड ईयर ए, सेकेंड ईयर बी। तो ये है सर्कुलेशन का एक एग्जांपल। दिस इज हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन, दिस इज प्लान, अगेन रिमेंबर दिस इज प्लान, ऊपर से हम देख रहे हैं, ओके, ऊपर से हम देख रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन हो रहा है यहाँ पे, और वर्टिकल का मतलब सीढ़ी वीढ़ी से जो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जाओगे, दैट इज कॉल्ड द वर्टिकल सर्कुलेशन, ओके। तो हॉरिजॉन्टल मतलब रूम टू रूम में जाने के लिए, वर्टिकल का मतलब है फ्लोर टू फ्लोर। प्रेमिसेस इसलिए बोले थे कि नॉट ओनली इन हाउस, तुम्हारा बड़ा बड़ा जो भी है कॉलेज स्कूल, उसमें भी ये एप्लीकेबल है, मतलब बिल्डिंग में एप्लीकेबल है, राइट। सो हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन रूम टू रूम। एग्जाम्पल क्या क्या बोलो तो, हॉरिजॉन्टल का भी हम बोले, हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन के लिए क्या क्या देना पड़ता है प्लान में? मैम कॉरिडोर, डाइनिंग। यस, पैसेज, लॉबीज, कॉरिडोर्स, ये सब, ठीक है। वर्टिकल्स में स्टेयर्स, यस लिफ्ट्स, मैम। ओके, ये है फ्लोर टू स्टेयर फ्लोर। लिफ्ट। हाँ, तो हॉरिजॉन्टल का देखो, अब हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन भी ऐसा प्लान करो कि अच्छा होना चाहिए, गुड और बैड दोनों ही होता है। सपोज ये तुम्हारा रूम हुआ है, ठीक है, अब यहाँ पे एक रूम है, यहाँ पे एक रूम है, मतलब इस तरफ पे इसके इस वाले में एक रूम है, इसके इस वाले में एक रूम है, ठीक है। तो हम लोग क्या किया, यहाँ पे एक दरवाजा बना दिया, अब यहाँ पे एक दरवाजा बना दिया। सो इज इट अ गुड सर्कुलेशन? मतलब ये डोर से ये इस वाले नीचे वाले रूम से इधर आया, ठीक है, इस वाले रूम से इस वाले में आया, अब इसको जाना है ये वाले रूम में, ठीक है। ये है वन रूम, सेकेंड रूम, थर्ड रूम। अब थर्ड रूम को जाने के लिए देखो कहाँ से जाना पड़ रहा है, यहाँ से होके यहाँ से जाना पड़ रहा है। तो ये क्या सही सर्कुलेशन तो हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो फ्रॉम रूम टू रूम, राइट। एक रूम से दूसरे रूम में हम जा रहे हैं, दूसरे से तीसरे में जा रहे हैं, बट इट इज सर्कुलेशन हॉरिजॉन्टल, बट इज इट ओके? ऐसा नो मैम। सर्कुलेशन सही है? वेरी गुड, नो नो है। मैम, नो मैम। क्यों? यहाँ पे सोफा बैठे हुआ, कोई गेस्ट बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा हॉल हो गया, सपोज यहाँ से कुछ है, तुम यहाँ से आके तुम्हारा रूम इस तरफ है, तुमको क्या हो रहा है, देखो बीच में से होकर जाना पड़ा, कोई टीवी देख रहा था सब लोग, तो इंटरप्ट कर रहे हैं, राइट, बीच में। तो दिस इज नॉट अ गुड सर्कुलेशन। तो इसके अगेंस्ट में हमको सर्कुलेशन वैसा ही है, ठीक है, मतलब तुम्हारा ऊपर में 3 नंबर रूम है, ठीक है, ऊपर में तुम्हारा 3 नंबर रूम है, मतलब ये फर्स्ट रूम, सेकेंड रूम, थर्ड रूम, ऐसा ही प्लान है। तो तुम अब दरवाजा कहाँ पे दोगे? मैम एक साइड में दूंगा। यस, एक साइड में हम लोग देंगे, ठीक है। सो दिस अ बैड सर्कुलेशन। तो हम लोग क्या किए, तो एक डोर से गया, दूसरे डोर से एंट्री मार रहा है, ओके। तो तुम्हारा फर्स्ट रूम से आया सेकेंड रूम, सेकेंड रूम से थर्ड रूम में चलेगा, ओके। तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ गुड सर्कुलेशन, ओके। अब वर्टिकल का भी वही है। तो हम लोग को स्टेयरकेस ऐसा करना चाहिए कि कॉमन एक जगह से, मतलब एक कॉमन वे से हम लोग इजीली ट्रैवल कर पाए, ठीक है, ऐसा हमने दिया है। और ये वाला है, और एक है कि तुम्हारा बाहर की तरफ से, मतलब सबको कहाँ पे आना पड़ेगा, एकदम यहाँ से आके ट्रैवल करना पड़ेगा ऊपर की फ्लोर में जाने के लिए, ठीक है। अब बोले इसमें से कौन सा सही गुड सर्कुलेशन है, 1 और 2? दिस वन इज गुड सर्कुलेशन, वर्टिकल सर्कुलेशन। 1 गुड है कि बैड है? ये अंदर में ही है सीढ़ी, ठीक है, और यहाँ से सब कॉमन वे है, सब लोग इस वाले रूम से भी यही यूज कर सकता है, इस वाले से भी, यहाँ किचन से भी ऊपर जा सकता है, लिविंग रूम से भी यहाँ अंदर से होके जा सकता है, ठीक है। मतलब ज्यादा डिस्टेंस सर्कुलेशन, ज्यादा मूवमेंट नहीं है, इसको कम स्टेप्स में ये ऊपर चला जा रहा है, ये भी कम स्टेप में ऊपर चला रहा है, ये भी कम स्टेप में। लेकिन इस वाले केस में क्या हो रहा है, देखो इसको भी इधर से आना पड़ रहा है, इसको भी इधर से आना, बहुत दूर दूर से आना पड़ रहा है सबको, ठीक है। अब बोलो कौन सा तुमको लग रहा है इज अ प्रॉपर सर्कुलेशन, वर्टिकल सर्कुलेशन, फर्स्ट और सेकेंड? हेलो हेलो, केटे गल ना कि? हाँ मैम। अच्छा बोलो, तो चुप क्यों हो? हाँ मैम, बोलिए मैम। तो हम पूछे ये फर्स्ट और सेकेंड सर्कुलेशन में कौन सा, अच्छा एस्केप है, कौन सा सही सर्कुलेशन है? फर्स्ट वाला। फर्स्ट तो हो गया, लेकिन मेरा ये चल क्यों नहीं रहा, एस्केप क्यों नहीं हो रहा?
ठीक है, फर्स्ट है। ओके, अच्छा कितना जन आया वहाँ पे स्टूडेंट, बोलो तो हमको, हम देख नहीं पा रहे। हाँ, मैम 5 जन है, 5 जन। 5 जन है, अच्छा ठीक है। सो दिस इज गुड एंड दिस इज बैड। ओके, अनिमेश नाइमुल अनामुल अच्छा अमरता। अच्छा, ओके ओके। नाउ फर्नीचर रिक्वायरमेंट, ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक कोई बोल सकता है फर्नीचर रिक्वायरमेंट, क्या लग रहा है ये क्या होना चाहिए? मैम कितना फर्नीचर लगेगा, मतलब सोफा, बेड, या फिर हाँ, जो होता है कितना, फर्नीचर। एक्चुअली कितना, एग्जैक्टली कितना नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि कौन सा फर्नीचर कौन सा रूम के लिए एप्लीकेबल है, राइट, मतलब कौन सा रूम में क्या फर्नीचर प्लेस करने से वी विल बी गेट बेनिफिटेड, राइट, ये वाला एक है। तो फंक्शन ऑफ रूम डिसाइड्स द फर्नीचर रिक्वायरमेंट, कि रूम का काम क्या है, ठीक है, उस हिसाब से हम फर्नीचर खरीदेंगे। सपोज तुम बेडरूम में ऑब्वियसली ओवन नहीं रखोगे, राइट, बेडरूम में ऑब्वियसली तुम डाइनिंग टेबल नहीं रखोगे, बेडरूम में तुमको सोना है तो बेड रखोगे, किचन में तुमको पकाना है, यू हैव टू कुक, सो कुकिंग वेयर्स वहां पे रखेंगे हम लोग, राइट, डाइनिंग हॉल में यू हैव टू ईट, सो डाइनिंग टेबल रखोगे, ठीक है, लिविंग रूम में सोफा ये सब रहता है, लिविंग रूम में तुम बेड रख दोगे नहीं, तो दीज आर द क्या होता है फर्नीचर रिक्वायरमेंट। तो जैसे लिविंग हॉल में सोफा, टी पॉय, टीवी केस ये सब है, ओके, तुम्हारा सिंगल डबल बेड, बेडरूम में ये सब है। तो नोइंग द टाइप ऑफ द फर्नीचर द डायमेंशन ऑफ द रूम कैन बी अराइव्ड एट। अब कौन सा रूम में कैसा सोफा सेट है, उसका डायमेंशन क्या है, उस हिसाब से भी हम लोग, देखो बेडरूम जब प्लान करते हो तुम लोग देखते हो कि ये सिंगल बेड वाला रूम बनाओगे या डबल बेड वाला रूम बनाओगे, उस हिसाब से तुम्हारा देखना प्लान भी बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है। ओके, बेडरूम का प्लान इतने भी, सिंगल बेड के लिए ऑब्वियसली तुम थोड़ा छोटा वाला बनाओगे, और डबल बेड मास्टर बेडरूम जहाँ पे होता है वहाँ पे थोड़ा उसका साइज बड़ा, किंग साइज बेड रहता है, तो क्या करोगे थोड़ा बड़ा साइज डायमेंशन वाला रूम बनाओगे, ठीक है। सो टाइप ऑफ फर्नीचर द डायमेंशन ऑफ द रूम ऑल्सो कैन बी डिसाइडेड, ठीक है, जैसे ये वाला हो गया लिविंग रूम में, इसको बोलते हैं टी पॉय, सोफा, शोकेस, टीवी केस, राइट, जैसे बेडरूम में ये बेड, कबर्ड, ड्रेसिंग टेबल ये सब रहता है, ओके, और किचन में तुम्हारा जहाँ पे वॉश बेसिन को वॉश, मतलब बेसिन बोलते हैं जहाँ पे वॉश करते हो, कुक करते हो, ओवन है, फ्रीज है, ये सब रहना चाहिए। और डाइनिंग टेबल ग्रुपिंग के हिसाब से तो किचन में भी डाइनिंग टेबल रख सकते हो अगर डाइनिंग हॉल नहीं है तो, ओके। सो इन दिस वे फंक्शन क्या है, यहाँ पे खा सकते हैं, पका सकते हैं, उस हिसाब से फर्नीचर है, यहाँ पे हम लोग बैठ सकते हैं उस हिसाब से, टीवी देख सकते हैं उस हिसाब से यहाँ पे फर्नीचर है, यहाँ पे हम लोग सो सकते हैं, अपना ड्रेस वैसे ये सब रख सकते हैं, ठीक है, अपना ड्रेसिंग ये सब कर सकते हैं, सो इस हिसाब से यहाँ पे ये वाला है। एंड ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द बेड, साइज ऑफ द कबर्ड, भी हमको ये रूम का साइज कितना होना चाहिए प्लान करना पड़ता है, ओके। नाउ कम्स द फ्लेक्सिबिलिटी, ये क्या लग रहा है क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी, प्लान बना रहे हो, रूम का प्लान बना रहे हो, अब बोलो फ्लेक्सिबिलिटी से क्या समझ में आ रहा है? हेलो मैम। হ্যালো, মানে শুনতে পাচ্ছ? हेलो मैम। मैम হ্যালো, मैम नेटवर्क। हेलो मैम। হ্যালো ম্যাম, টাইপ করো, টাইপ করো। हेलो, হ্যাঁ ম্যাম, এবার আসছে। হ্যালো, हेलो मैम। मैम लेफ्ट कर जाओ, वेट करो। কটা বাজে? 10 মিনিট। प्रॉब्लम हो रहा है, बीच में प्रॉब्लम हो रहा हाँ है मैम, क्या? आप सुना दे रहे हैं। कितना देर पहले तक पहले हुआ? मैं सुनाई दे रहा था। पहले भी सुनाई दे रहा था? मैम फ्लेक्सिबिलिटी के बाद पूछना सुना नहीं। अच्छा ये अच्छा मैम स्क्रीन अच्छा, स्क्रीन नहीं दिखा। फ्लेक्सिबिलिटी तक सुनाई दिया था ना, ठीक है व्हाट ठीक इज फ्लेक्सिबिलिटी? हाँ है, मैम, ओके 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 ठीक है। वही मैम। दिखा दे रहा स्क्रीन, यस मैम। ठीक है। तो आई वाज आस्किंग कि फ्लेक्सिबिलिटी से क्या समझ में आता है, एग्जांपल हिंट भी दिए थे कि फ्लेक्सिबिलिटी, दिस रूम इज फ्लेक्सिबल,
एक वर्ड हमने सेंटेंस हमने यूज किया, तो उससे क्या समझ में आ रहा है कि देखो सपोज एक रूम तुम अभी प्लान किए एज अ हॉल, ठीक है, या तुम एक रूम प्लान किए हो एज अ स्टडी रूम, ठीक है, इन फ्यूचर ऐसा कर सकते हो कि उस स्टडी रूम को हम लोग गेस्ट रूम भी बना सकते हैं, मतलब वहां पे अगर कोई गेस्ट आएगा तो हम लोग वो स्टडी रूम को भी दे सकते हैं एज अ गेस्ट रूम, दैट इज कॉल्ड दी फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। और एक एग्जांपल है कि तुम्हारा टू फैसिलिटेट एकोमोडेशन ऑफ चेंजेस, कोई अगर प्लान में चेंज आएगा तो उसको एकोमोडेट कर पाएगा, उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, ओके। सो टू फैसिलिटेट एकोमोडेशन ऑफ चेंजेस इन द प्लान ऑफ द बिल्डिंग इन फ्यूचर इफ नेसेसरी, ठीक है। जैसे हम बोले थे कि पहले तुम लोग सिर्फ 4 जन थे घर में, तुम मम्मी पापा तुम्हारे भाई 4 जन थे, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि तुम्हारा जो स्टडी रूम था, ठीक है, अचानक से तुम्हारे घर में कोई गेस्ट आ गया, ठीक है, तो इस हिसाब से क्या करोगे, अब तुम अपना स्टडी रूम उसको गेस्ट को दे दोगे एज अ गेस्ट रूम यूज करने के लिए, सो दैट इज कॉल्ड दी फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो ऐसा बनाओ कि वहां पे तुम्हारा छोटा सा एक बेड भी अटैच हो जाए, जिससे कि लगेगा हाँ वहां पे अगर कोई आएगा तो वहां पे रेस्ट कर सकेगा, ओके। और एक होता है कि बहुत बड़ा हॉल था, यहाँ पे पार्टीशन पहले एज अ हॉल यूज कर रहे थे इतना देर से, ठीक है, अब फैमिली का मेंबर्स बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, हम एक पार्टीशन करके 2 रूम क्रिएट कर दिया, ठीक है। इसको भी बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। कोई अगर फ्यूचर में पहले ये था, फ्यूचर में कोई चेंजेस आ गया तो हम उसको कन्वर्ट कर दिया दूसरा काम के लिए, ठीक है। पहले ये हॉल था, अब दूसरे में अब क्या हो जाएगा, इन फ्यूचर इट विल बी कन्वर्टेड टू सपोज बेडरूम, ठीक है, तो 2 बेडरूम यहाँ पे बन गया। तो सिमिलरली ये देखो स्टडी रूम पहले होता था, अब इसको एज अ गेस्ट रूम भी हम इन फ्यूचर यूज कर सकते हैं, मे बी प्लान फॉर यूजिंग गेस्ट रूम एक्सेट्रा, ओके। द रूम विच इज प्लान फॉर वन फंक्शन, इसका काम था यहाँ पे आके तुम पढ़ाई करते, लेकिन बाद में यहाँ पे गेस्ट रूम आ रहा है, ओके, मतलब गेस्ट को यहाँ पे रहने दे रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड द फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। अब आता है सैनिटेशन, मेनली इस वजह से सैनिटेशन रूम प्लान ऐसा भी करना चाहिए कि प्रॉपर्ली सैनिटाइज, मतलब अभी तो बहुत मेंटेन है, ठीक है, सैनिटेशन ये सब फॉलो करना है, जैसे कि अप्रोप्रिएट लाइटिंग होना चाहिए, वेदर इट इज नेचुरल और तुम्हारा क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब है कि डोर्स नहीं, विंडोज को ऐसा प्लेसमेंट दो जिससे कि बाहर का सनलाइट इजीली रूम में आ जाए, दैट इज कॉल्ड नेचुरल लाइटिंग, ठीक है। दूसरा क्या है आर्टिफिशियल, मतलब बल्ब्स, ट्यूबलाइट्स ये सब देना है, कहाँ कहाँ पे कितना देना है, राइट। दूसरा है वेंटिलेशन, एक है नेचुरल वेंटिलेशन, एक है आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब अगेन डोर्स एंड विंडोज ऐसा प्लेस करोगे कि ठंडा हवा आए, या तुम्हारा क्या बोलते हैं विंड वर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, हम बोलते हैं ना कि साउथ फेसिंग ऐसा बोलते हैं क्योंकि उस डायरेक्शन से में तुम्हारा अच्छा विंड फ्लो होता है, उस डायरेक्शन में अगर हम विंडो देंगे तो अच्छा विंड ब्रीज आएगा, ठीक है। तो दूसरा क्या है आर्टिफिशियल वेंटिलेशन। आर्टिफिशियल वेंटिलेशन मतलब एयर कंडीशनर, कूलर ये सब लगाना, ओके। कहाँ पे प्लान में दिखाना पड़ेगा कि कहाँ पे तुम्हारा ये सब लग सकता है, ओके। दूसरा है क्लीनलीनेस, अच्छे से क्लीन होना चाहिए। और तुम्हारा क्या है सैनिटरी प्रोविजंस, विच आर योर बाथरूम, वाटर क्लोजेस, लैट्रिन, ये सब भी देना पड़ता है। अभी तक हम वॉशरूम ये सब में आए नहीं थे, तो ये सब भी हमको दिखना पड़ता है, ओके। तो दीज आर द सैनिटेशन। दूसरा एलिगेंस। अब एलिगेंस क्या होता है, एनीवन एलिगेंस क्या लग रहा है, एलिगेंस से क्या पता चलता है कि ये टर्म से क्या पता चलता है, एक कोई चीज बहुत एलिगेंट है बोलते हैं ना, मतलब क्या है कि तुम्हारा घर बाहर से कैसा दिखता है, ओके। आउटर लुक, व्हाट इज योर आउटर लुक, तुम्हारा घर का एक्सटीरियर कैसा है, दैट इज कॉल्ड द एलिगेंट। मतलब अच्छा होना चाहिए, कैसा मतलब टूटा फूटा मतलब ठीक ठाक वैसा भी नहीं, अच्छा होना चाहिए। सो एस्थेटिक व्यू, ठीक है। अभी मॉडर्न जमाने में पिछले मतलब पूर्वज के जमाने में क्या होता था, पहले होता था कि एलिगेंस में ज्यादा फोकस नहीं करते थे, ओके। पहले मेनली प्लानिंग में क्या होता है, एक होता है स्ट्रेंथ में होता था, और एक होता है ब्यूटी, ठीक है, कि तुम्हारा घर कैसा है, एक है ब्यूटी और एक है स्ट्रेंथ, ठीक है। पहले क्या होता था इसमें ज्यादा फोकस होता था, तो ब्यूटी मतलब एस्थेटिक लुक में इतना ये लोग फोकस नहीं करते थे, ठीक है। बाहर का जैसा भी हो अंदर से स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब कि उसका स्ट्रेंथ अच्छे से होना चाहिए कि कोई अर्थक्वेक हुआ, कोई कुछ भी आया तो ये अपना जगह पर टिका रहा है, ओके। लेकिन अभी मैक्सिमम क्या करते हैं ब्यूटी या एक्सटर्नल लुक के ऊपर ज्यादा फोकस हो गया है, स्ट्रेंथ भी लगेगा और ब्यूटी पर ज्यादा खर्चा भी हो रहा है अभी, ठीक है। फॉल सीलिंग लगाना, बाहर पोर्चेस देना, ऑल दिस आर दी
वेरेंडा देना, ठीक है, फॉल्स कॉलम देना, ये सब है तुम्हारा ब्यूटी के लिए कि बाहर से कैसा दिखेगा। अभी क्या होता है कि अंदर से बहुत एस्थेटिक है, अंदर का रूम तुमने एकदम इंटीरियर डिजाइन करके अच्छे से बना, लेकिन बाहर का एक्सटीरियर लुक तुम्हारा ऐसा है कि मतलब ठीक ठाक है, तो कोई भी नहीं बोलेगा कि तुम्हारा घर अंदर से बहुत अच्छा होगा। सब बाहर का लुक देखते हैं, अभी वही है, बाहर से कैसा दिखने में वही देखते हैं, राइट। सो अभी इसमें भी बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है एज अ प्लानर तुम लोगों को, ओके, कि एस्थेटिक व्यू ऑफ द बिल्डिंग कैसा है, ओके। नाउ हेलो একটু আমাকে উপর से, हाँ ओके ठीक है। So elegance of the building can be achieved by कैसे increasing the plinth height of the building, treatment of exterior of building, sloping roof provide करना, projections etc. अब ये वाला देखो, इसमें से कौन सा तुमको लग रहा है एलिगेंट, फर्स्ट और सेकंड में से? सेकंड वाला। यस, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, तो ऑब्वियसली ये वाला क्या लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाला पूरा फ्लैट है, कोई प्रोजेक्शन ही नहीं है तो ये एक छोटा सा प्रोजेक्शन है, लेकिन इसमें देखो कैसा प्रोजेक्शन है बाहर, ये फॉल्स ये वाला दिया है कॉलम, ठीक है, ऐसा स्लोपिंग रूफ दिया है, ठीक है, सो एस्थेटिक लुक दे रहा है, ओके। तो इन दिस वे एलिगेंट हम लोग जैसे ये दोनों सेम हाउस है, ठीक है, पहले ये था अभी ये है, तो ये पुअर एलिगेंस, अच्छा एलिगेंस, एलिगेंट प्लीजेंट एलिगेंस, ओके। ये भी सेम है, इसमें भी देखो थोड़ा बहुत चेंज करके दोनों में से ये वाला थोड़ा अच्छा दिख रहा है, ओके। इसमें से देखो ये पहले ऐसा था, अभी यहाँ पे ये सब दे दिया, फॉल्स वाला ये वाला दे दिया, ये लोड नहीं ले रहा है, लेकिन जस्ट फॉर शो यहाँ पे पॉट्स लगा दिया, ठीक है, वेरेंडा बना दिया, इससे एक एलिगेंट लुक आ रहा है, ओके। तो ये सेम। नाउ कम्स द इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब है कि टू प्लान द बिल्डिंग विद इन द बजट, मतलब पैसा तुम्हारा सपोज 100 रुपीज है, अब तुम प्लान ऐसा बना दिया पूरा 1000 रुपीज का हो गया, तो वो इकोनॉमिक नहीं है, उसको इकोनॉमिक हम लोग नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए कि ये क्वालिटी भी होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ मटेरियल, ठीक है, या स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए, ठीक है, ये जो भी प्रिंसिपल है सब फॉलो कर रहा है, एंड ऑल्सो इट इज विद इन द बजट, उसको बोलते हैं इकोनॉमी। तो कैसे करेंगे, हाउ वी विल अचीव दोस थिंग्स, क्या करना है, मिनिमम डायमेंशन, रूमीनेस फॉलो करके मिनिमम डायमेंशन देना है, लंबा एकदम हॉल की तरह रूम बना दिया बेडरूम को, ऐसा नहीं है, उससे खर्चा भी बढ़ेगा लेकिन तुम्हारा क्वालिटी भी अच्छा नहीं होगा, ठीक है। मिनिमम डायमेंशन होना रहे, सिंपल डिजाइन ऑफ विंडोज दो, उससे भी थोड़ा बहुत इकोनॉमिक हो जाता है, क्लीनलीनेस रखो, प्रोवाइड मिनिमम हाइट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब एक स्टैंडर्ड हाइट मेंटेन करना है, उससे नीचे नहीं, मिनिमम हाइट देना है, ओके। ज्यादा बड़ा बड़ा मैरिज हॉल की तरह बड़ा बड़ा दे दिया वैसा नहीं। अवॉइडिंग पोर्चेस लॉबीज, इस वजह से हम लोग इकोनॉमी मेंटेन कर सकते हैं अपने बिल्डिंग प्लान में, ओके। दूसरा है प्रैक्टिकल कंसिडरेशन। अब ये सब प्लानिंग फंडामेंटल्स प्लानिंग्स को छोड़ के भी हमको प्रैक्टिकल रहना है, ठीक है, कि ऐसा कुछ प्लान कर दिया जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। सो एडिशनल क्या क्या कंसिडरेशंस है, एडिशनल कंसिडरेशंस है कि प्रोविजन ऑफ फ्यूचर एक्सटेंशन विदाउट डिसमेंटलिंग, मतलब तुम्हारा सपोज प्लान ऐसा बनाओ कि फ्यूचर में उसको हम एक्सटेंड कर पाएंगे तोड़े बिना, मतलब तोड़ फोड़ किए बिना हम उसको एक्सटेंड कर पाएंगे, ठीक है। सो दैट शुड बी मेंटेन, ओके। दूसरा है कि ये सब मेंटेन करना ही है, एसएससीसी मतलब स्ट्रेंथ होना चाहिए, स्टेबिलिटी, कन्वीनियंट एंड कंफर्टेबल, एकदम प्रायोरिटी है, ये सब मेंटेन करना ही पड़ेगा। कंफर्टेबल वाला वही सर्कुलेशन बाहर की तरफ, कौन सा अच्छा सर्कुलेशन कौन सा बुरा सर्कुलेशन, प्राइवेसी मेंटेन है कि नहीं, ये सब, ओके। लार्ज साइज ऑफ द रूम कैन बी शुड बी मेड, जिससे कि देखो अगर तुम पहले ही छोटा रूम कर दिया, ठीक है, लेकिन उसको बाद में हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, अगर उसको बड़ा करना भी पड़ेगा भी तो हमको उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो लेकिन अगर हम बड़ा रूम कर दे रहे तो क्या रहा, फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से इसको में हम 2 भाग में डिवाइड भी कर सकते हैं, ओके। तो ये पॉसिबल है टू कन्वर्ट लार्ज रूम टू द स्मॉल, बट स्मॉल रूम को लार्ज में कन्वर्ट करना ये थोड़ा मुश्किल है, इसलिए प्लान भी वैसा ही करो कि फ्यूचर एक्सटेंशन भी हो जाए, ठीक है, पॉसिबल अगर है तो ठीक है, प्लस इतना छोटा भी मत करो कि तुम्हारा इसको हम बड़ा ही नहीं कर पाए, ठीक है। सो इट शुड बी लाइक दैट कि हमको मिनिमाइज भी कर सकते हैं और इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ऐसा रूम बनाना है। दूसरा क्या है, एंड डोर्स एंड विंडोज शुड बी मिनिमम, ये याद रखना है, तो बहुत ज्यादा एक रूम में 2-4 तो डोर रहेगा तो इट विल लुक पूरा एकदम हिजी कंजेस्टेड रह जाता है, राइट। तो ऐसा करो कि तुम्हारा सब बाकी का सब प्रिंसिपल्स भी फॉलो हो और ये प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस भी फॉलो करना चाहिए, ओके।
सो आई थिंक यही दीज आर द 12 तुम्हारा वो है प्रिंसिपल्स ऑफ बिल्डिंग प्लानिंग, रेसिडेंशियल बिल्डिंग प्लानिंग, प्लीज रिमेम्बर। ओके, सो इतना ही है आई थिंक। क्लियर है सबको ये वाला यस मैम, हाँ टोटल? ठीक है, ये सब कुछ। तो यहाँ से जनरली तुम लोग अगर थ्योरेटिकल रहता है तो आता था 15 मार्क्स ऐसे में, नहीं तो यहाँ से एमसीक्यूज दे सकता है कि किसका मीनिंग क्या है, कौन सा अच्छा प्राइवेसी मेंटेन करेगा, रूमीनेस क्या है। ओके, ये सब तुम मैम लोग इस को सेमेस्टर दिया की रहेगा। वही एग्जाम हो गई एमसीक्यू टाइप इस सेमेस्टर में? अब वो तो डिपेंड करता है, अगर लॉकडाउन खुल गया तो नहीं होगा, अगर ऐसे ओके चलता मैम, रहेगा ठीक। तो वही होगा। ओके, हाँ मैम, ठीक है मैम। ओ, ये मैम नेक्स्ट लेक्चर है वो वाला दिखा है। हाँ नेक्स्ट लेक्चर तुम लोग देखे हो, हम बोले नहीं ना, नेक्स्ट लेक्चर है तुम्हारा बिल्डिंग बायलॉज। ओके, बिल्डिंग बाय लॉस, ओके मैम। ओके ओके मैम, देन, ठीक है। थैंक यू। रुको थैंक यू रुको, मैम। अटेंडेंस अटेंडेंस हम दे हाँ देते मैम, हैं। हाँ मैम। अच्छा, ये समझ में आया तो ये चैप्टर देखो, ये हाँ हाँ मैम, थ्योरेटिकल है, थोड़ा पढ़ने से हो जाएगा, उतना टफ नहीं है। ओके, ओके मैम। हाँ हमने तो पीडीएफ दे दिया, देख लूंगा बाद हाँ में। हाँ हाँ, ओके ओके, नहीं अभी क्लास में समझ में आया तो बाद में तो हाँ देखोगे। मैम, हाँ 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 मैम, हाँ मैम। ओके देन, थैंक यू। ठीक है, लंच थैंक यू ब्रेक मैम। तुम लोग का अभी। ओके, ठीक है। ओके।